Hello and welcome to our channel. This is video number 14 of most important JEE Main PYQ series. In this video, we'll do matrix and determinants. So let's revise the concepts first. So here, special type of matrices are written. Once check. Here I am not defining what is square matrix, what is rectangular matrix. All those things I am not defining. So let's check these special type of matrices. First one is idempotent matrix. Idempotent matrix is the matrix which satisfy the property A square equals to A. A square equals to A, right? And keep this in mind. अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे A square का, तो that of A should be either 0 or 1. One more thing. Any power, if A is idempotent, any power of A will be equals to A. You can check that. जैसे A cube अगर हमें find करना है तो that is equals to A square into A. A square is A, that is A square. It means A. It means idempotent power, any power of idempotent will be equals to A. ठीक है. Most important property of idempotent is property number 3. An idempotent matrix which is non-singular. Non-singular means that value is not equals to 0. Non-singular must be identity matrix. तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि idempotent and non-singular, it means it must be identity matrix. और आपको याद ऐसे रखना है कि idempotent means idem. This word we can derive from identity, यानी कि वो मैट्रिक्स which is not losing its identity. That is why A की कोई भी पावर हम लें तो A ही आता है. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं. Similarly, second type है involutory. Involutory ड्राइव हो रहा है किससे? इनवर्स से, राइट? तो we can say involutory means a matrix which is equals to its inverse, that is A square equals to I. ऐसे याद रखना है. Now what are properties for involutory? First of all, that you can take that both sides. You will get either +1 or -1. ठीक है. कोई भी पावर अगर हम ले, मान लो आपको ये पता है कि A एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है और आप इसकी A पावर 5 फाइंड करना चाहते हैं, तो आप उसे लिखेंगे A स्क्वायर इंटू A. A स्क्वायर क्या है? I के इक्वल है. तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? A. तो रिजल्ट ये है, कंक्लूजन ये है, वॉट एवर द पावर विल टेक फॉर involutory matrix, it will be equals to A if power is odd, it will be equals to I if power is even. ठीक है. नेक्स्ट इज nil potent. नाम से ही पता चल रहा है. nil potent means if there is a matrix and there exists K such that A power K is null matrix, this is null matrix, ठीक है, then it is called nilpotent and K is called its index if, मतलब K सबसे छोटी ऐसी पावर है such that A power K is null. उससे छोटी कोई भी पावर अगर हम लेंगे then it is not a null matrix, right? So K is smallest of such kind of number. आप देख सकते हो अगर A पावर K null matrix है तो obviously A पावर K plus 1 यानी कि A की पावर A की कोई भी पावर जो K से बड़ी होगी वो null ही होगा. तो index means what? Least power for which A power K is null. Next, orthogonal matrix. Orthogonal matrix is important and interesting also. Orthogonal matrix is a matrix satisfy the property A transpose equals to I or A transpose A, right? If a matrix is satisfying this property, then it is orthogonal matrix. इसमें भी det की वैल्यू अगर हम देखें तो प्लस माइनस a होगी. कैसे आएगा? टेकिंग det बोथ साइड्स, तो det a होल स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. सेकंड जो प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रखना कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा उसकी कोई भी रो उठाओ, कोई भी कॉलम उठाओ, ये लिखा हुआ है ना, रोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर यूनिट वेक्टर्स
यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये देख सकते हैं आप, इसकी अगर दोनों रोज देखें तो पहली रो को हम लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे से, दूसरी को कंपेयर कर सकते हैं माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे से। ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को आप चेक कर सकते हैं, दोनों यूनिट वेक्टर्स भी हैं, दोनों यूनिट वेक्टर्स भी हैं और दोनों ऑर्थोगोनल यानी कि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब अगर k एक ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट a पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू k, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड k। ठीक है, आप देख सकते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के यहाँ पर पीरियड्स फाइंड किए हुए हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ अब, ट्रेस। ट्रेस इंपॉर्टेंट है। ट्रेस का मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। डिफाइन ऐसे किया हुआ है, आप देख सकते हो, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू समेशन ए आई इज मूविंग फ्रॉम 1 to n, दैट इज ट्रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, पहली प्रॉपर्टी बड़ी ऑब्वियस सी है कि आप किसी का भी ट्रेस फाइंड करो, मतलब किसी का मतलब कि आप ए का ट्रेस फाइंड करो या उसके ट्रांसपोज का फाइंड करो, मतलब एक ही है। ट्रेस एंट्री मार सकता है, मतलब ट्रेस ऑफ सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ट्रेस, चाहे दो मैट्रिसेस हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो। ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए दोनों सेम होंगे, और ट्रेस फाइंड, जब हम ट्रेस ऑफ ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए एंड बी नॉन स्क्वायर भी हो सकते हैं, जैसे ए को हम 3/2 और बी को 2/3 ले सकते हैं या वाइस वर्सा। ठीक है, प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए। तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज ये वाला जो ए ट्रांसपोज जो भी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। इसका अगर आप ट्रेस फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये आप चेक करके देख सकते हैं, ए को आप ले लें 2/3, राइट, और फिर चेक करें क्या ये ट्रू है। लेकिन आप दिमाग में रखें ये चीज कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, राइट। ट्रेस ऑफ पी इनवर्स, ये स्टार प्रॉपर्टी है, भूल मत जाना इसे। ट्रेस ऑफ पी इनवर्स बिकॉज ऑफ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर आप सिक्स्थ प्रॉपर्टी फिफ्थ में लगाएं तो ट्रेस ऑफ पी इनवर्स को लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ पी इनवर्स पी ए, एंड ट्रेस ऑफ पी इनवर्स को सिक्स्थ प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ पी इनवर्स पी ए, दैट इज ट्रेस ऑफ आई पी, दैट इज ट्रेस ऑफ ए रिजल्ट। तो ध्यान रखना, ट्रेस ऑफ एबीसी या फिर ट्रेस ऑफ बीसीए, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी कंक्लूजन है थर्ड प्रॉपर्टी का, ट्रेस ऑफ एबीसी, ट्रेस ऑफ बीसीए, ट्रेस ऑफ सीएबी। लेकिन ध्यान रखना, जब दो से ज्यादा मैट्रिसेस हो जाएं, जब दो से ज्यादा मैट्रिसेस हो जाएं तो साइकिल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एबीसी सीएबी बी, एबीसी सीएबी बीसीए, ए सी बी नहीं ले सकते हम, ये इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, साइकिल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रेस की ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे। ट्रांसपोज डेफिनेशन, ऑब्वियसली मैंने कहा है कि बेसिक डेफिनेशन में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो हम बोर्ड में भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी ये सब कुछ गिवन है कि व्हाट इज ट्रांसपोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ट्रांसपोज की, उसका रिवर्सल लो। रिवर्सल लो क्या है, अगर हम होल ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसे हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। और ट्रांसपोज पर बेस्ड दो डेफिनेशंस हैं, कौन कौन सी, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज अगर हम किसी मैट्रिक्स का लें और चेंज ना हो वो मैट्रिक्स तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लें और नेगेटिव आ जाए वैल्यू तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होती हैं, और कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक हो ऑफ ऑर्डर ओड, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक ओड ऑर्डर का हमेशा हमें दैट वैल्यू 0 देता है, यानी कि वो हमेशा सिंगुलर होता है, ओड ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट आप आ जाइए, केले हैमिल्टन थ्योरम।
ये मान लो आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, राइट। अब ए मैट्रिक्स एक पॉलिनोमियल को हमेशा सेटिस्फाई करता है, उस पॉलिनोमियल का नाम है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और वो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? अगर आप a माइनस एक्स आई, व्हाट इज एक्स आई, व्हाट इज एक्स इज वेरिएबल, व्हाट इज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप a माइनस एक्स आई का डेट लोगे तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आएगा, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और जो ये a मैट्रिक्स है ना, ये उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं आपको जनरलाइज्ड केस बता रहा हूं 3/3 का, अगर a 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसा आएगा, ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस हाफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए स्क्वायर इंटू ए माइनस डेट ऑफ ए आई। मतलब ये हुआ कि जब हम 3/3 का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ट्रेस आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ डेट आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। केले हैमिल्टन थ्योरम पर बेस्ड कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन लगे बिना केले हैमिल्टन के भी हो सकता होगा वो, लेकिन इस थ्योरम से आप टाइम बचा सकते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आई थिंक ये जेई एडवांस मतलब जेई में 2005 में आया था। ये नहीं था तो ऐसा ही था, मतलब सिमिलर क्वेश्चन क्या था, ए इज अ गिवन, राइट, ए इज गिवन सच दैट ए इनवर्स इज दिस, आपको कैलकुलेट करना था ए बी सी। अब अगर आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे, आई पुट करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन उससे आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप को टाइम ज्यादा डिवोट करना होगा। लेकिन अगर आप केले हैमिल्टन के बारे में जानते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे ए माइनस एक्स आई का डेट, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स 0 3 0 5 माइनस एक्स 6 1 0 2 माइनस एक्स। ये जो डेट है, ये जो मतलब पोलिनोमियल है, ये डिटर्मिनेंट है, इसे आप एक्सपेंड कर लें। तो एक्सपेंड करने के बाद आप चेक करें क्या वैल्यू आती है। एक्सपेंड अगर आप करना चाहेंगे तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 5 माइनस नेक्स्ट 0, नेक्स्ट आ जाएगा 3 टाइम्स 0 5 माइनस एक्स। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, ए मैट्रिक्स उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेशन अपनी चेक कर लें। पॉलिनोमियल आएगा एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 14x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम ए इज सेटिस्फाइंग दिस। अगर ए इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 8 ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस 5 i इज इक्वल्स टू 0। आपको चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स अगर आपको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 को दोनों और मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 14i प्लस 5 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, दिस इज नल, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/5 ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 14i, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, जो गिवन है उसे कंपेयर कर सकते हैं जो हमें मिला है उसके साथ। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -8 आ जाएगी, c की 14। प्लीज कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इधर उधर अगर हो कैलकुलेशन तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम केले हैमिल्टन थ्योरम यूज कर सकते हैं, टाइम बच सकता है हमारा ऐसे।
तो नेक्स्ट कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। मान लो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। कभी भी आपको सिमेट्रिक, यहाँ मैंने बड़े एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिए हैं चेक करने के लिए कि वो सिमेट्रिक हैं या नहीं, लेकिन कभी भी आपको चेक करना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स को, तो आप उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये वाला मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे इसे चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो ट्रांसपोज भी मतलब अंदर जा सकता है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो पहले का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, नेक्स्ट इज ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज दैट इज ए। तो ये सेम है, इसका मतलब यस ये सिमेट्रिक है। तो इसे एक बार पढ़ लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है, ए सिमेट्रिक होता है, ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है। आइडिया सिर्फ इतना है ये लिखने का कि जब भी आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करना है। और दूसरा, ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स भी हैं, इनमें आप एग्जाम में चेक नहीं करोगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये सिमेट्रिक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। और इसी कॉन्सेप्ट से हम लिखते हैं ना कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। वो यही वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इन दोनों का सम आप चेक कर सकते हैं, ए के इक्वल है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। आप देखोगे कि भरा हुआ है पूरा का पूरा पेपर, मतलब जो भी पेपर देखोगे और उसमें मैट्रिसेस के क्वेश्चन देखोगे तो एडजॉइंट मैक्सिमम आता है, एडजॉइंट या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये दो मैक्सिमम आएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी टफ भी हैं याद करनी, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी इनकी प्रॉपर्टीज में। यहाँ लिखी हुई हैं, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं। सबसे पहले एडजॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको याद होगा। एडजॉइंट कैलकुलेट करते हुए हम ट्रांसपोज लेते हैं किसका? जो कोफैक्टर्स हैं उसके मैट्रिक्स का। तो ध्यान रखना, एडजॉइंट कैलकुलेट करते हुए भी ट्रांसपोज लेते हैं और इनवर्स कैलकुलेट करते हुए भी ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डेट ऑफ ए। ठीक, तो वो यहां नहीं लिखा क्योंकि वो आपको आता है एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दैट इज एडजॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे हम इनवर्स भी डिफाइन करते हैं वो फर्स्ट वन है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान रखना, जब भी आप अटक जाओ या कोई प्रॉपर्टी भूल जाओ और एडजॉइंट का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर दो फर्स्ट प्रॉपर्टी से, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं मोस्टली वन से ही ड्राइव हुई हैं। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डेट ऑफ ए इंटू आई एन। अब ये जो थ्योरम है, ये जो रिजल्ट है, इसमें दोनों तरफ डेट ले लेंगे। दोनों तरफ डेट ले लेंगे तो आपके पास सेकंड रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि k टाइम्स a का अगर आप डेट लेंगे तो डेट आ जाएगा k पावर n, डेट ऑफ a, है ना। कांस्टेंट बाहर कैसे आता है? ऑर्डर के साथ। तो सेकंड प्रॉपर्टी वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं प्रूफ नहीं करवाने वाला हूं आप लोगों को, एक बार आप देखो अच्छे से और याद कर लो इन्हें। हिंट मैंने दे दिया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही सब कुछ प्रूफ होगा। सेकंड की जनरलाइज्ड केस याद रखना, क्योंकि एडजॉइंट एक बार नहीं 10 बार भी आ सकते हैं। तो अगर एडजॉइंट m टाइम्स आ जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि डेट की वैल्यू निकालो, तो डेट ऑफ a पावर n-1, पावर n-1 ऐसे याद रखो कि जब एक एडजॉइंट था तो पावर n-1, दो होंगे तो इसका स्क्वायर, तीन होंगे तो इसका क्यूब, and if these adjoints are m times, then its value will be n minus m and n minus 1 whole power m times whole power m. At any cost you have to write power n minus 1. अब n minus 1 की पावर क्या होगी? नंबर ऑफ टाइम्स एडजॉइंट। ठीक है, अभी याद कर लो पॉज करके, जितनी प्रॉपर्टीज हैं याद करके ही आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डेट, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट डेट, तो उस केस में क्या होगा? डेट ऑफ ए n पावर
that of a n minus 2, that of a power n minus 2 into a। ये वाली प्रॉपर्टी आप एडजॉइंट ए को बी मान के फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा लो, प्रूव हो जाएगी अगर आप प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, फोर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? अक्सर स्टूडेंट्स के को बाहर निकाल देते हैं सीधा एडजॉइंट से, ऐसा नहीं होता। मान लो लेट order of a is n, then we have to take k power n minus 1 outside। ठीक है, k डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, k will come outside with power n minus 1। अब इसी का अगर आप det दोनों ओर ले लो, apply det both sides in property number 4, you will get property number 5 because k power n minus 1 whole power n, ये जो प्रॉपर्टी लिखी थी ना, ये लग जाएगी। ठीक है, because when we calculate adjoint we use reversal law, that is why adjoint of AB जो होगा वो adjoint of B adjoint of A होगा। ओके, रिवर्सल लो कहीं भी आ जाए, जैसे ट्रांसपोज में ट्रांसपोज ऑफ ए बी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए बी, इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए। ध्यान रखना, सेवंथ प्रॉपर्टी बड़ी ऑब्वियस सी है। तो ये प्रॉपर्टीज आप देख लो, रट लो पहले, फिर आगे बढ़ो। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट कैसे करना है वो यहां लिख दिया है। ठीक है, रिवर्सल लॉ वाज इंपॉर्टेंट, वो मैंने लिख दिया है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसकी ऑब्वियस सी हैं, तो मीन्स वो मैंने सोच लिया है कि आप लोगों को आती होंगी, है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डेट की बात करें, अगर ए इनवर्स का डेट लेना है तो डेट ऑफ ए इनवर्स दैट इज 1 अपॉन डेट ए, है ना। और अगर अगर फिर भी दिक्कत आती है ए इनवर्स की किसी भी प्रॉपर्टी में, तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, ये रिलेशन लगा दो। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है? एडजॉइंट ए की वैल्यू, एडजॉइंट ए इज ए इनवर्स इनटू डेट ऑफ ए। तो अब जो भी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज होंगी लगा दो, उसकी जगह ये पुट कर दो ए इनवर्स डेट ए, तो आ जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्रैमर्स रूल ये काफी इंपॉर्टेंट है। D1 D2 D3 यहां पर सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। ओके, D का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स, D1 का मतलब आप फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो इस वाले कॉलम से। सिमिलरली D2 का मतलब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करो, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करो, उसके बाद चेक करो कि D कहीं जीरो तो नहीं है। अगर D जीरो नहीं है तो इफ D इज नॉट जीरो तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बेसिकली आप देख सकते हैं जो वो तीन इक्वेशंस हैं वो प्लेन्स हैं तीनों। ओके, अगर D नॉन जीरो होगा तो वो तीनों प्लेन एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, यानी कि हमारे पास एक्स वाई जेड की एक सिंगल वैल्यू होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम? x की वैल्यू d1 बाई डी, y की वैल्यू d2 बाई डी, ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन अगर d जीरो हो गया तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर D जीरो हो गया तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। अब देखो D जीरो हो गया और D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो हो गया ना, तो नो सॉल्यूशन। आगे नो सॉल्यूशन के भी कई पार्ट्स बनते हैं कि दो प्लेन्स पैरेलल हैं, एक इंटरसेक्टिंग है, या फिर हमारे पास प्रिज्म बन रहा है, ऐसे कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर एक भी D1 D2 D3 में से एक भी नॉन जीरो हो गया तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। अब अगर D1 D2 D3 तीनों जीरो हो गए, अगर तीनों जीरो हो गए तो मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये मे का मतलब क्या हुआ? मे का ये मतलब हुआ कि अगर तीनों जीरो हो जाएं तो भी सिचुएशन आ सकती है कि हमारे पास सॉल्यूशन ना हो। वो कब होगा? अगर प्लेन्स हमारे पैरेलल हो जाएंगे ना, आप लिख के देख लो, तीन प्लेन्स तीनों पैरेलल, और फिर चेक करो उनका D1 D2 D3, आप पाओगे यू विल गेट दैट D0 for three parallel planes you will get D0 D1 0 D2 0 D3 0, सब कुछ जीरो आ जाएगा, but there is no solution। तो कैसे चेक करेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं? इफ यू आर गेटिंग D0 D1 D2 D3 all three zero, in that situation what you have to do, किसी भी एक इक्वेशन से, यहां मैं लिख देता हूं, किसी भी एक सिचुएशन में पुट z इक्वल्स टू k। ठीक है,
find x and y in terms of k and verify in equation 3। पहले क्या किया, z को k पुट कर दिया, फिर पहली दो इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू k की टर्म्स में फाइंड की, और फिर थर्ड इक्वेशन में हम लोगों ने वेरीफाई किया कि वो वैल्यूज x y z की वेरीफाई हो रही हैं या नहीं। इफ third equation will not be verified, we have to say no solution. If third equation is verified, we have to say infinitely many solution. अब देखो, अगर कांस्टेंट जो गिवन सिस्टम है उसमें तीनों कांस्टेंट अगर जीरो हो जाए, और ध्यान रखना ये जो क्रैमर्स रूल वाला सेक्शन है, ये अगर आप अच्छे से सुन लोगे तो हमेशा ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है जेईई मेन में, तो वो एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, तो अच्छे से इसे समझो। सेकंड सिचुएशन है d1 d2 d3 0। d1 d2 d3 0 का मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट्स तीनों जीरो हो गए, यानी कि इक्वेशंस होमोजेनियस हो गई। इक्वेशंस होमोजेनियस का मतलब तीनों प्लेन्स अब हमारे पास कर रहे हैं ओरिजिन से, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन तो यहां हो ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन तो यहां हो ही नहीं सकता, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करो। डी अगर नॉन जीरो है तो हमारे पास, डी अगर नॉन जीरो है तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन था, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन था। लेकिन अगर तीन प्लेन्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं और यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास है, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब ऑब्वियस सा सॉल्यूशन कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज जीरो होंगी, ठीक है। अगर डी, सेकंड केस, अगर डी जीरो हो जाए, मतलब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि होमोजेनियस सिस्टम हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर होमोजेनियस सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन अदर देन जीरो सॉल्यूशन, तो या फिर पूछा जाएगा हैविंग नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑल्सो। तो ध्यान रखना, होमोजेनियस में अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो डी जीरो, और अगर ओनली जीरो सॉल्यूशन है तो डी नॉन जीरो, रिवर्स है ना। अगर ओनली जीरो सॉल्यूशन है तो डी नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं तो डी जीरो। एक तो ये वे है याद करने का, दूसरा मैंने आपको बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन। तो डी नॉन जीरो का मतलब एक ही सॉल्यूशन, प्लेन्स ओरिजिन से पास करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन कौन सा होगा, 0 0 0, ठीक है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से दिमाग में रखें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, राइट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है लेट एस रूट एन इज फ्रॉम 1 to 50 एंड एन इज ऑड। तो हम ये कह सकते हैं कि एस में जो एलिमेंट्स है ना वो ये वाले हैं, √1, √3, मतलब हमें सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट एस दी हुई है, मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूं रोस्टर फॉर्म में। सो ऑन √49 ये एलिमेंट्स हैं किसके, एस के। आगे क्या बोलते हैं, ए कोई भी एलिमेंट है एस का, ठीक है। कैपिटल ए की वैल्यू दी हुई है, डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की बात हो रही है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लगाओ, डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्या ये हम लोगों ने सीखा है, बिल्कुल सीखा है। दैट इज इक्वल्स टू डेट ऑफ ए क्यूब, ओके, दैट इज इक्वल्स टू डेट ऑफ ए क्यूब, क्यूब या स्क्वायर, स्क्वायर, क्योंकि n-1, ओके। अब डेट ऑफ ए आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएगा 1 और 0 0 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेट की वैल्यू, यानी कि डेट ए का स्क्वायर कितना आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और ध्यान रखना ए की ये वैल्यूज हैं, ए बिलोंग्स टू एस का मतलब ए की ये वैल्यूज हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ समेशन डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, all possible values of det of adjoint of a is 100 lambda then lambda। तो सभी पॉसिबल वैल्यूज a की कौन कौन सी हैं, √1, √3 एंड सो ऑन। हमें चाहिए समेशन ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एंड a बिलोंग्स टू s, राइट। तो आप देखो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, √1 होगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1 अगर होगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, √1 होगा तो ये आ जाएगी 2, बिकॉज
√1 2 स्क्वायर, √3, नेक्स्ट वैल्यू इज √3, √3 का मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर। नेक्स्ट √5 का मतलब 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी √49 स्क्वायर। ओके, यहां से 2 स्क्वायर कॉमन, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, सो ऑन अप टू 25 स्क्वायर। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 25? आप चेक कर लें, 25 दूनी 50, 51 अपॉन 6, राइट। नाउ कैलकुलेट, यू विल गेट इट। तो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या है आपको बड़े अच्छे से वो समझनी है। क्वेश्चन जब करते हो ना, पहली बात क्वेश्चन खत्म करके थोड़ा एक बार सांस लो और दूसरा क्वेश्चन पढ़ो और हल्का सा सोचो उसे, ठीक है, हल्का सा सोचो कि क्या लैंग्वेज क्या कह रही है। तो आप पाओगे कि जो क्वेश्चन है हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, बस लैंग्वेज हमें थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी, ऐसा हो सकता है। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप के ऑलमोस्ट। एस गिवन है, राइट, एस गिवन है, एस इज अ सेट, जो भी गिवन है। इसके बाद Tn इज इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू एस, यानी कि ए वो सभी मैट्रिसेस हैं जो एस के एलिमेंट्स हैं। ए बिलोंग्स टू एस सच दैट ए पावर n+1 इज आई, ये आई लिखा हुआ है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ Tn। अब देखो ए क्या है, एस का एलिमेंट, राइट। Tn फाइंड करना है हमें। जैसे यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको T1 फाइंड करना है, आपको T2 फाइंड करना है एंड सो ऑन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ T1? T1 इज दैट ए सच दैट ए पावर 1, ए स्क्वायर इज आई, ए स्क्वायर इज आई। अब आप ए स्क्वायर फटाफट से कैलकुलेट करें। ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 - a प्लस ए बी एंड 0 बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आई। समझे? अब देखो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास बी स्क्वायर तो 1 ही होना चाहिए, तभी तो ये आई बन सकता है। बी स्क्वायर अगर 1 हो गया, बी स्क्वायर अगर 1 हो गया, इनफैक्ट बी स्क्वायर 1 होना चाहिए और -1 नहीं हो सकता। क्यों? अच्छा, बी +1 -1 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बी की वैल्यू 1 हुई, राइट, अगर बी की वैल्यू 1 होती है, उस पर्टिकुलर केस में ए कुछ भी हो सकता है, ए इज एनी रियल नंबर। ओके, अब जैसे T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ऐसे ही B की वैल्यू अगर -1 है, हम देखते हैं क्या होगा। T2 की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, T2 का मतलब ए स्क्वायर इंटू 3। T3 का मतलब क्या होगा, T3 का मतलब हो जाएगा a³ इंटू 4। होगा क्या कि B-1, चलो एक केस B-1 वाला होगा, लेकिन हमें चाहिए सभी कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट B का 1 होना जरूरी है हर एक एलिमेंट में, तभी हमारे पास I बन सकता है, क्योंकि हर जगह इवन पावर तो है ही, ए स्क्वायर ए पावर 4 वो तो क्रिएट हो ही रहा है, यानी कि B की वैल्यू 1 तो हर 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 एक केस में कंपल्सरी है। तो B की वैल्यू 1, जब B 1 होगा तो A कुछ भी हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि B = 1 एंड A बिलोंग्स टू एनी एलिमेंट फ्रॉम 1 to 100। ये तो कॉमन होगा ही, ये तो मतलब B1 के लिए हमारे पास T1 T2 T3 T4 सभी में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ही। ऑलराइट, B1 के लिए A कुछ भी हो सकता है और वो T1 T2 सभी में आएंगे। इसका यह मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन कितने होंगे, जितनी A की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कितनी हो गई, 100। तो इसका आंसर होगा 100, ठीक है। तो जब हम B1 लेंगे तो B1 A एनी नंबर फ्रॉम 1 to 100 वो तो कॉमन है ही,
दैट्स व्हाई आंसर इज 100. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, सबसे पहले तो इसमें वही सॉल्यूशन वाला लफड़ा है. एंड वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन को देखकर अक्सर स्टूडेंट्स डर जाते हैं, सर इतनी बड़ी कैलकुलेशंस कैसे होगी. सबसे पहले ये जेईई एडवांस में आया था शायद 2008-9, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. उसके बाद मेंस में भी ये आने लगा. ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने मेंस से लिया है. एडवांस में ये एज ए पैसेज आया था, 2008 या 9 या 10 में आया होगा, आप चेक कर सकते हैं. तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है. ए 3/3 है, कोई दिक्कत नहीं. ए को आप ले लो. कैसे? A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये मैंने A लिख लिया. ठीक है, आ गया A. अब कह रहे हैं A इंटू 110, A इंटू 110, तुम्हें याद है? अच्छा ठीक है, ये क्रैश कोर्स है, मैं भूल गया था. A इक्वल्स टू 110, यानी कि A इंटू 110, A इंटू 110 हो क्या रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर दोबारा से 3 इंटू 1 एक आ जाएगा. इसकी वैल्यू इन्होंने बोली है कि ये 110 है. अब देखो, यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 प्लस B1 इज 1, फर्स्ट इक्वेशन. A2 प्लस B2 इज 1, A3 प्लस B3. बच्चे अक्सर ये देख के डर जाते हैं कि सर ऐसी तो खूब सारी इक्वेशंस आ जाएंगी. आप एक कैलकुलेट तो करो एक बार. देखो यहां से कितना अच्छा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया. A3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ B3. आगे भी चलते हैं. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे A को, एक काम करते हैं, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, फिर आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं. मैं थर्ड वाली इक्वेशन सबसे पहले सोल्व कर रहा हूं क्योंकि यहां मुझे जीरो सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं. और ये भी सजेशन है कि जहां पर जीरो सबसे ज्यादा नजर आए वहां से आप स्टार्ट करो. तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं एक बार. ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. और अगर आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं तो सीधा देख सकते हैं फर्स्ट रो एंड दिस कॉलम. देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं. फर्स्ट रो 001 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास सिर्फ C1 बचेगा. तो C1 1, सिमिलरली C2 1, C3 2, C1 C2 C3 तो सीधा ही पता चल गया अब हमें. अब ये सारी वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं बाकी सब कुछ कैलकुलेट करने में, तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आपका सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि सेकंड जो इक्वेशन आएगी आपके पास, जो यहां से आएगा, वो सारी इक्वेशंस ए एंड सी की फॉर्म में आएंगी. सी की तो सारी वैल्यूज पता है, ए की वैल्यूज पता चल गई. और इस इक्वेशन से किसकी वैल्यूज आ जाएंगी? B1 B2 B3 की. तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको डरना नहीं है. जब दिख रहे हैं और जीरोज हैं, एक सिमेट्री आपको दिख रही है ना, 110, उसके बाद -101, उसके बाद 001, सॉरी 101 001. स्टार्ट मैक्सिमम जीरो से करें. ठीक है, इसका आंसर आप चेक कर लें. इसका आंसर होगा बी. ओके, इसका आंसर होगा बी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. So let's do next question. A is given, B is given, then number of elements in the set Nm, and M belongs to 1 to up to 10, and N A power N, M B power N is I, is equals to. देखो सबसे पहले whenever higher power we have to find, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें छुपा होगा. either you will get a square equals to a, or a square equals to I, or a square equals to null, और the same thing for a cube A4. कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर एक पैटर्न आपको देगा ही, राइट? तो लेट्स चेक फॉर a स्क्वायर. a स्क्वायर 2 -2 1 -1 2 -2 1 -1. This is equals to 2 into 2 4 -2, it is 2 2 -2 1 -1. वाओ, a स्क्वायर a आ गया, राइट? a square equals to a. Similarly you can check b square, you will get b. Now the question is value of n a power n
plus mb power m should be equals to I. So let's check because n m are the elements of this set. तो let's check for different values. Start करते हैं हम लोग. एक काम करते हैं for n equals to 1. स्टार्ट करते हैं for n equals to 1, m equals to 1 से. If both are equals to 1, we will get a plus b. And what is a plus b? 1, 0, 0, 1. Is it equals to I? Yes. इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को फिक्स कर लो. मान लो हम n को 1 फिक्स करते हैं, m को 2. तो हमारे पास आ जाएगा a, n को 1 फिक्स किया, n इंटू a पावर n, a, 2 b स्क्वायर इज b. इज इट इक्वल्स टू I? नो. ऐसे ही अगर आप n2 और हो क्या रहा है a प्लस b I के इक्वल है, तो कोई भी मल्टीपल हम लेंगे तो I नहीं आएगा हमारा किसी और वैल्यू के लिए. एंड व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, जिसके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये I के इक्वल हो. और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक्सेप्ट 1 1 वी विल नॉट गेट एनी ऑर्डर्ड पेयर nm फॉर विच वी विल गेट वैल्यू I. इसका मतलब आंसर 1 ही होगा. इज इट क्लियर? क्योंकि जैसे आप n और m, फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस b विल बी मल्टीपल ऑफ I इफ कोफिशिएंट्स आर सेम. और अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो I भी नहीं आएगा. ठीक है, तो द आंसर शुड बी 1. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देखो ये क्वेश्चन आया है ना. Thank God this question was asked in integer type, I guess. Just a minute. Yes, it was asked in numerical type exactly. तो आधे से ज्यादा लोगों ने इसे देखा और छोड़ दिया, टच भी नहीं किया. होना क्या था इसमें, आप ध्यान से देखो. x एक बड़ा सिंपल सा मैट्रिक्स दिया हुआ है. x इज अ मैट्रिक्स, y इन टर्म्स ऑफ x, और y हमें मोटिवेट कर रहा है कि x स्क्वायर फाइंड करो. ठीक है, तो x स्क्वायर फटाफट से फाइंड कर लो इसका. x इंटू एक्स 0 0 1 0 0 0 0 0 0. ठीक है, ये x स्क्वायर आ गया. अब हम y को लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस बीटा टाइम्स x. x इज 0 1 0 0 0 1 0 0 0 प्लस गामा टाइम्स 0 0 1 0 0 0, सब कुछ 0 आ गया. ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी. आप वैल्यू पुट करो. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करो आप. y की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू आ गई अल्फा. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, ओके गुड, थर्ड इज गामा. ठीक है, अरे ये तो 0 ही आ रहा है, राइट. इसके बाद अल्फा, इसके बाद बीटा, ओके, और नेक्स्ट वन इज 0 0 एंड अल्फा, राइट. दिस इज y, ओके, दिस इज इक्वल्स टू y. लेकिन एक और चीज गिवन है, y इनवर्स इज गिवन. y हमारे पास है, y इनवर्स इज गिवन. हमें ये पता है कि y इंटू y इनवर्स की वैल्यू I के बराबर होती है. तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को कर लो मल्टीप्लाई. y एंड y इनवर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो. y और y इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आप y इनवर्स चेक कर सकते हैं कि y इनवर्स से 1/5 आ रहा है कॉमन. ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा 0 अल्फा बीटा 0 0 अल्फा 1/5 मैंने निकाला कॉमन, ये बाहर आ जाएगा. और y इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 1 -2 1 0 1 -2 0 0 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट. अब आप मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स को. तो दोनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे,
दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें, दोनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, अल्फा हमारे पास आ जाएगा अल्फा बाय 5 इज इक्वल्स टू 1, यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही आप बीटा फाइंड करोगे, गामा फाइंड करोगे, बीटा एंड गामा। अब मुझे बताओ यहां पर z की कहां जरूरत थी, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए z दे दिया, तो सिर्फ x एंड y से हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। अल्फा की वैल्यू 5 आएगी, आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू आई थिंक 10 आनी चाहिए, और गामा की वैल्यू 15 या -15 चेक कर लें। अब आप चेक कर लें क्या आंसर आएगा, पुट करें और चेक कर लें क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि क्या यूजफुल है क्वेश्चन में और क्या नहीं यूजफुल। कई बार सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये एक्स्ट्रा जो इक्वेशन है वो दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू गिवन। यहां मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, डेट आप दोनों तरफ लेंगे, एडजॉइंट ए का डेट कितना होगा, डेट ऑफ ए ऑर्डर क्या है 3, 2 कितनी बार एडजॉइंट है 2 बार, ये डेट आ गया, और राइट साइड का डेट कैलकुलेट करें, कंपेयर कर लें, और उन्होंने क्लियर कर दिया पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ए पार 4 है तो दो वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू आंसर चाहिए हमें। नेक्स्ट वन, हाँ ये इसलिए क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी वो अच्छे से रिवाइज हो जाएं। एक ही प्रॉपर्टी में, एक ही क्वेश्चन में दो तीन प्रॉपर्टीज अपनी यूज हो रही हैं। सबसे पहले देखो सिस्टमैटिक, बी सिस्टमैटिक, डेट ऑफ ए तो गिवन है, क्वेश्चन को अच्छे से लिखो पहले फिर से, डेट ऑफ ए इज 2, ओके, आगे एडजॉइंट 5 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, ठीक है, 5 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, ओके। ये 2 जब डेट से बाहर आएगा, ऑर्डर इज 3, तो हमारे पास 2 क्यूब डेट ऑफ, 2 क्यूब डेट ऑफ एडजॉइंट, यस, एडजॉइंट से जब ये 5 बाहर आएगा तो आपको याद होगा कि जब बाहर आया था एडजॉइंट से, यू रिमेंबर वी टुक आउटसाइड के पावर n-1, it means 5 square will come outside, 5 square will come outside, so I am writing here 5 square and adjoint of a cube, all right. Now this 5 square will come outside of that 2 cube, it will come as square that 5 square whole cube, and that of adjoint of a cube, right. There are adjoint 2 times adjoint, ये आ गया हमारे पास 2 क्यूब, ये आ गया 5 पावर 6, 2 टाइम्स एडजॉइंट, यानी कि डेट ऑफ ए की जगह ए क्यूब, डेट ऑफ ए क्यूब n-1 दैट इज 2, 2 टाइम्स एडजॉइंट 2, आपको याद होगा n-1 पावर m इज नंबर ऑफ टाइम्स एडजॉइंट। नाउ द वैल्यू इज 2 क्यूब 5 6, डेट ऑफ ए इज 2, डेट ऑफ ए इज 2, 2 क्यूब 4 कितना हो गया है, 4 इंटू 2 पावर 32, इज इट फाइन, ठीक है, सॉरी 12, ऑल राइट, बिकॉज 2 क्यूब 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, सो फाइनल आंसर 2 पावर 15 एंड 5 पावर 6। अब आप चेक कर लें क्या आंसर आता है हमारा, 5 2 पावर 15 5 पावर 6, तो 5 पावर 6 अगर आप 10 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 2 पावर 9 इंटू 10 पावर 6, तो देखो या तो ए आंसर, अच्छा ए आंसर ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, फिर बड़ी, अच्छा अब बड़ी पावर नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी पावर भी है, ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे ही चल रहे हैं, राइट। तो क्या करेंगे इसमें हम, ए आई जे इज 2j-i, सबसे पहले आप ए को अच्छे से डिफाइन करें, ए को अच्छे से डिफाइन करें, ए आई जे 2 पावर j-i, जे का मतलब हुआ कॉलम, j-i यानी कि
column minus row. तो first element is 1 1. All diagonal entries will be 1 1 1. मतलब 2 power 0 2 power 0 2 power 0. Second is second column first row. It means 2 minus 1. It is 2. Next 2 square. 1 by 2 1 by 2 square. This is 1. Here second column. Second row first column minus third column 3 minus it is 2. ठीक है. Third row second column 1 by 2 and 1. This is value of a. This is value of a. Do one thing, because a square हमें चाहिए ना, a square हमें चाहिए, तो यहीं पर हम a square कैलकुलेट करेंगे. So let's calculate a square. Let's calculate a square. 1 upon 2 square 1 upon 2 1. Okay, when we'll calculate a square, up first row first column 1 1 1, it is 3. First element is 3. Second 2 2 2 6. Third 2 square 2 square 2 square, यानी कि 3 into 2 square. बस आगे आप लोगों को कैलकुलेट करना है. मैं आपको बता देता हूं कि you will get, because if you will take 3 common from first row, in the same manner you have to take 3 common from each row, but you can check in first row we can take 3 common, तो ये हमारे पास 3a आएगा. It means a square 3a आ गया. If you want to calculate a cube, that is a square into a, that is 3a square, that is 3 square a. Okay, now the question is done. A4 कितना होगा? Similarly you can calculate A4, A5, A6, everything you can calculate easily. Simplify. Okay, A4, if you want to find A4, a square 3 square a square 3 cube a. Catch the pattern and solve it. ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो, जेई मेन में जब भी क्वेश्चन आता है आपको बस थोड़ा ठंडे दिमाग से थोड़ी देर के लिए सोचना है. क्वेश्चन 5-10 सेकंड के लिए देखो कि क्या पूछना चाहते हैं वो. क्वेश्चन टफ नहीं होगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप. टोटल नंबर ऑफ 3 by 3. Total number of 3 by 3 matrices A having entries 0 1 2 3 such that sum of all diagonal entries, यानी कि ट्रेस की बात हो रही है, all diagonal entries of A transpose is 9. अब देखो रिजल्ट, ट्रेस की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो, A transpose ट्रेस ऑफ A transpose is sum of all possible entries, यानी कि अगर A में 9 एंट्रीज हैं, A1 B1 C1 ऐसे 9 एंट्रीज हैं, तो ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज मींस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस ऑल एंट्रीज. एक काम करो, इसे A2 लिखो, इसे A3, सिमिलरली 9. तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं summation AI square. I is moving from 1 to 9, right? So this is sum of diagonal entries of A transpose. It means trace of A transpose is equals to 9 and possible values of AI are 0 1 2 3. ठीक है, कोई भी इनमें से वैल्यू पॉसिबल हो सकती है. तो क्वेश्चन में हमें केसेस लेने होंगे. हमें चाहिए 9 एंट्रीज हैं, उनका सम ऑफ स्क्वायर 9 आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक एंट्री 9 3 के इक्वल, रेस्ट ऑल 0. कोई भी एक 3 के इक्वल, रेस्ट ऑल 0. इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस थिंग? कोई भी एक, टोटल हमारे पास 9 एंट्रीज हैं, उनमें से एक एंट्री कितनी है? 3 है और बाकी सब 0 हैं. तो कितनी वेज में मैट्रिक्स बन सकता है? 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, यानी कि 9 वेज. केस 2 पे आ जाए. अब केस 2, और क्या पॉसिबिलिटी है कि सम 9 आ जाए? अगर आप किन्हीं भी 2 को 2 2 लेंगे और किसी एक को 1 लेंगे, बाकी सब 0. ठीक है, बाकी सब 0. तो ये भी हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर हमें दे रहा है किसके इक्वल? 9 के इक्वल. राइट. कितनी वेज में ये अरेंज हो सकता है? 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल,
ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 4, तो 9 इंटू 4 इंटू 7, 9 इंटू 4 इंटू 7 आप कैलकुलेट कर लें ये वाली वैल्यू। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आप फाइंड कर लें। हाँ, समथिंग 252। नेक्स्ट केस, केस 3। और क्या सिचुएशन हो सकती है? एक तो 2 यूज कर लो, राइट, 1 2 एंड रेस्ट 1, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड 1 0। ओके, ये भी एक सिचुएशन हो जाएगी। इसके बाद इसे आप अरेंज कर सकते हैं कितनी वेज में? 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ओके, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लें। और लास्ट और कौन सा केस होगा? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक आप चेक करें। 1 2 एंड 1 2 3 4 5 5 1 5 1 6 3 zeros, तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल 5 1 6 एंड 3 फैक्टोरियल। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ये आई थिंक 504 आ जाएगी। एक 9 आ गई, 252। और कोई केस हो सकता है? एक और केस है, सभी 1 यूज हो जाए, सभी 1 यूज हो जाए। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 1? तो टोटल नंबर ऑफ वेज 504 प्लस 252 प्लस 9 प्लस 1, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें, ये आंसर आपका आएगा 766। एक बार चेक कर लें आप, 766 करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेशन से एक बार देख लें। ठीक है, तो ऐसे आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने किए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं। अभी देखो जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस करेंगे। 14th क्वेश्चन पे आओ। 14th क्वेश्चन कह रहा है अल्फा बीटा गामा बी रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ओके, रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, राइट। यानी कि हमें हमें समेशन ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता है -a। हमें अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू पता है b। हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा पता है c। if the system equation of if the system of equation in UVW given by these three equations has non-trivial solution, UVW की टर्म्स में तीनों इक्वेशंस होमोजीनियस हैं। अगर तीनों इक्वेशंस होमोजीनियस हैं, राइट, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो डेट 0 होना चाहिए। डेट कौन सा? कोफिशिएंट्स का डेट। ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा, एंड नेक्स्ट वन इज गामा अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। ठीक है, अब देखो ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, डायरेक्ट इसकी जो एक्सपेंशन है, क्योंकि 0 से इक्वेट करना है तो मैं साइन नहीं देख रहा हूं। हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स इसके बन सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ये वैल्यू 0 के बराबर है, राइट। हमें यूज करने हैं ये 3 रिलेशंस। कौन से 3? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकंड को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, बिकॉज होल स्क्वायर बनाया तो माइनस ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा हम लोगों ने ऐड किया है। बैलेंस करने के लिए सबट्रैक्ट भी करना होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -a। ठीक है, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स। a एंड b नॉन जीरो, a 0 नहीं है, इसका मतलब a 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना था? a स्क्वायर बाय b। आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर बाय b यहां से हमारे पास a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b के इक्वल आ रहा है। a स्क्वायर बाय b की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अरे ये क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2022 पेपर 1 है या 2 है? पेपर आई थिंक पेपर 2 था ये। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। बीटा बी रियल नंबर, ओके। कंसिडर द मैट्रिक्स, ठीक है। इज सिंगुलर, बात सिंगुलर नॉन सिंगुलर की हो रही है, यानी कि क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि डेट तो एक बार फाइंड करो भाई। सो कैलकुलेट डेट। डेट डेट की बात अगर हम करेंगे, डेट ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा? -2 बीटा 0 +2 -3 +2 बीटा -3 +2 बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ये -1, यानी कि जो डेट ऑफ ए है वो -1, इट मीन्स डेट ऑफ ए 0 नहीं है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे इन्होंने बोला है कि ये जो बड़ा सा मैट्रिक्स है ये भी नॉन सिंगुलर है, और इसमें से a⁴ तो कॉमन आ रहा है। a⁴ कॉमन आया, ये बचा हमारे पास a², ये हमारे पास बचता है a² माइनस बीटा -1 टाइम्स a, राइट, माइनस बीटा इज इक्वल्स टू नल। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो नॉन सिंगुलर है, यानी कि यहां भी वो बोल रहे हैं कि आपको डेट अप्लाई करना है, तो डेट ऑफ a⁴ जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। आप ध्यान से देखो, इसके फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं? इसके फैक्टर्स बन रहे हैं a+i एंड a-βi, ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। डेट मैंने लगाया इज इक्वल टू 0। ए नॉन सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर है, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आइदर डेट ऑफ a+i इज 0 और डेट ऑफ a-βi इज 0। इसका यह मतलब हुआ कि हमें यही दो चीजें कैलकुलेट करनी है, a+i और a-βi। a+i का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये आ जाएगा डेट ऑफ b +1 0 1 2, यहां भी 2, -2 3 1 -1। a+i का ये मतलब हुआ, इसे 0 से इक्वेट करें। ठीक है, a+i को किससे इक्वेट करें? 0 से इक्वेट करें। अब इसकी डेट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, डेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चलेगा, जब आप कैलकुलेट करोगे इसका डेट, उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसका डेट कैलकुलेट करोगे, आप चेक कर लें, उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। 0 के इक्वल दिया हुआ है, पॉसिबल नहीं है, तो ये केस तो हो गया रिजेक्ट। सेकंड केस a-βi, सेकंड केस a-βi। a-βi का मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास आ जाएगा बीटा। अच्छा, ये पहला एलिमेंट 0 0 1 2, 1 माइनस बीटा -2, इट इज 3 1 -2 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू इसका डेट, इसका डेट। ठीक है, इन दोनों का जो डेट है, अबे, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसका जो डेट है दैट इज इक्वल्स 0। अब चेक करो इसे, जब आप सोल्व करोगे, क्योंकि इसे सोल्व करना भी इजी है, इसे जब आप सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास इजिली बीटा की वैल्यू आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, ये एक्सपेंड मैंने किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 -3 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, 2 -3 + 3 बीटा इज इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू 1/3, बीटा की वैल्यू 1/3, 9 बीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं 3। तो अब बताओ, ठीक है, अब बताओ, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था क्वेश्चन में, और कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही वाले कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मतलब जेई की प्रिपरेशन करते हुए बहुत बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मूले या फिर फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर अगर कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके, तो आप इजीली कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, ये 2021 में पूछा गया था, पेपर 1 का क्वेश्चन है। देखो 3x3 तीन चार मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, ये मल्टी करेक्ट है, जेई मेन में नहीं आते, लेकिन ऐसा हो सकता है ना किसी एक ऑप्शन को उठाकर वो पूछ लें। ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग एंजॉय करोगे इस क्वेश्चन को। E इज गिवन, F इज गिवन। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, M what they are asking, 3x3 matrix M, this mod denotes that of M. Okay, E is equals to 1 2 3 2 3 4, so on P is 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भाई बहन लग रहा है ना, क्योंकि अगर आप सभी मैट्रिक्सेस को एज ए वेक्टर देखो तो ये तीनों रोज जो हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं, राइट, और तीनों परपेंडिकुलर भी हैं, तो ये ऑर्थोगोनल भी है, सीधा पता चल गया। पता नहीं जरूरत पड़ेगी कि नहीं, लेकिन है ये ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट एफ। एफ ध्यान से देखो, ई और एफ तो एक दूसरे के भाई बंधु नजर आ रहे हैं, जैसे 1 2 3। अच्छा, अगर मैं एफ में इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो ये आ जाएगा 1 2 3, और उसके बाद इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दूं तो हमारे पास एज इट इज ई आ जाएगा। तो एक बात क्लियर है, after two transformations f is becoming e, it means that value of e and f is same। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। f इज इक्वल्स टू पी ई पी स्क्वेयर। अच्छा, ए ऑप्शन में वो पूछ रहे हैं पी स्क्वेयर हमें कैलकुलेट करना है। पी स्क्वेयर का मतलब होता है कि आई आप कैलकुलेट कर लें, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, राइट। आई और ये के 0, आई एंड जे 0, के आई 0, के 1, के जे 0, जे आई 0, जे के 0, जे 1। तो पी स्क्वेयर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है? ठीक है, पी स्क्वेयर वैल्यू, वेरी गुड, ऑप्शन मैच तो कर रही है, लेकिन हमें तो पी भी कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 0 0, रेड पेन नहीं यूज कर रहा हूं मैं अब, 1 0 0 0 0 1 0 ये हमारे पास पी की वैल्यू है। इसके बाद ई की वैल्यू 1 2 3 2 3 4 8 13 18। देखो मैं भी जब कैलकुलेट करता हूं ना, तो आप भी साथ में कैलकुलेट किया करो, बात समझ रहे हो मेरी। डायरेक्ट मैं पहले कैलकुलेट करके आंसर भी लिख सकता हूं, राइट, लेकिन आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करो, इस वजह से मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अब आप मल्टीप्लाई करो, थोड़े बहुत शॉर्टकट मैं ले लूंगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई करो फटाफट से। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो क्या वैल्यू आ रही है ना, चेक करो आप क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले 1 रो कॉलम, 1 2 3, थर्ड एलिमेंट सेम रहेगा, 8 13 18, सेकेंड 2 3 4। ठीक है, 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 3 2। ठीक है, 1 3 2 8 18 13 एंड 2 4 3 विच इज इक्वल्स टू एफ। तो फर्स्ट क्लेम हो गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो आ गया। अब आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे। एक चीज याद रखना, ऑप्शंस आर आल्सो पार्ट ऑफ क्वेश्चन, और ए ऑप्शन में बहुत सी मेहनत करके हम लोगों ने ए ऑप्शन प्रूव की है, तो जो इंफॉर्मेशन ए ऑप्शन में है हम वो भी यूज कर सकते हैं। बी ऑप्शन में बात हो रही है डेट की,
बी ऑप्शन में बात हो रही है डेट की, डेट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो क्योंकि डेट की अगर बात हो रही है, एफ की वैल्यू हमें ई की टर्म्स में पता है, तो आओ बी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ये ई क्यू है, एफ की वैल्यू हम पुट करते हैं पीई पी, तो पी स्क्वायर दैट इज आई, तो ये आ जाएगा ई, ये आ जाएगा ई, आगे पी क्यू स्क्वायर का डेट, कौन कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है, और डेट की प्रॉपर्टी आपको पता ही है। अब क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि डेट ऑफ ई कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, आप पाओगे कि उसकी तो वैल्यू जीरो है, यानी कि बी का लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, और राइट हैंड साइड में भी जब आप एफ की जगह वैल्यू पुट करोगे पीई पी की, ई कॉमन निकाल, अच्छा 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 2 मिनट, डेट अलग अलग है, तो ये तो जीरो हो गया, ई क्यू का डेट जीरो हो गया क्योंकि डेट ऑफ ई जीरो है, पी एफ क्यू इनवर्स का भी डेट जीरो हो गया क्योंकि डेट ऑफ एफ भी जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, राइट साइड जीरो, यानी कि बी भी आंसर हुआ। अब ई एंड एफ डेट जीरो है, यानी कि जीरो ग्रेटर देन जीरो, इट इज नॉट ट्रू, जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इज ट्रू, बट जीरो ग्रेटर देन जीरो इज नॉट ट्रू, ये आंसर नहीं होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में अब फिर दोबारा से जो डायगोनल एंट्रीज का मतलब क्या हुआ, ट्रेस, ट्रेस की प्रॉपर्टीज हमें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, पूछ रहे हैं कि ट्रेस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ दिस, कैलकुलेट करते हैं जरा, ट्रेस ऑफ पी इनवर्स ई पी, आपको पता है ट्रेस ऑफ सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ट्रेस, तो हम लोगों ने इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने ट्रेस में की थी, ट्रेस ऑफ एबीसी इज ट्रेस ऑफ सी ए बी, यानी कि ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ ई प्लस ट्रेस ऑफ एफ, ये हमारे पास ट्रेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन आ गया। दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है, ई पी इनवर्स एफ पी, उसका ट्रेस मैं अब छोड़ रहा हूं आप पे, आप चेक करोगे और मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि डी भी आंसर आ रहा है। तो अब बताओ इसमें मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो डेफिनेशंस हैं, उन्हीं से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ओके। So this question asked in 2020 in paper 1, let M be 3 by 3 invertible matrix with real entries. I denote 3 by 3 identity matrix. If M inverse is equals to adjoint of M, then which of the following always true? M inverse, they are talking about M inverse. सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आप लिख लें, M inverse is adjoint of M upon that of M, right? दिस इज वैल्यू ऑफ एम इनवर्स, और बिकॉज वी हैव वन रिलेशन, एक रिलेशन हमारे पास है, इसका ये मतलब हुआ कि डेट डेट की वैल्यू चाहिए हमें क्योंकि एम इनवर्स में यूज है उसका, और एक रिलेशन है जिसमें एडजॉइंट इन्वॉल्व है, एम इनवर्स इन्वॉल्व है, क्यों ना एक काम करें, उसका डेट लें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डेट लेने पर हमारे पास आ जाएगा एम इनवर्स डेट ऑफ एम इनवर्स, और because we have 2 times adjoint, therefore we can write that of m square 2 times square, right? तो यहां से that of m power 5 is equals to 1, that of m will have 5 values but real value only 1, we have to consider only real value because all entries of m are real, it is given, ठीक है, तो that b आंसर तो आ गया। इसके बाद हमें डेट ऑफ एम की वैल्यू 1 आ गई, राइट, तो एम इनवर्स की वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ एम, ये, और राइट साइड में 2 बार एडजॉइंट है, प्रॉपर्टी हम लोगों ने की है, 2 बार एडजॉइंट हो तो उसे हम लिख सकते हैं डेट ऑफ एम स्क्वायर, राइट, डेट ऑफ एम स्क्वायर इनटू, देखो ये प्रॉपर्टी की है ना आज हम लोगों ने, ये वाली प्रॉपर्टी, 2 टाइम्स एडजॉइंट डेट ऑफ ए एन माइनस टू इंटू ए, डेट ऑफ ए एन माइनस पावर एन माइनस टू इंटू ए, तो उससे हमारे पास जो वैल्यू है, उससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एडजॉइंट एम की, एम इनवर्स की वैल्यू, नॉट एडजॉइंट एम, एम इनवर्स की वैल्यू, डेट ऑफ एम क्योंकि 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया एम इनवर्स इक्वल्स टू एम, राइट,
एम इनवर्स इक्वल्स टू एम अगर हमारे पास आ गया तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया एम स्क्वेयर इक्वल्स टू आई। ओके, अब बिकॉज एम स्क्वेयर इज एडजॉइंट ऑफ एम एज वेल, अच्छा पहले मैं एडजॉइंट एम वैसे लिख रहा था, एम एम इनवर्स को रिप्लेस कर दो एडजॉइंट एम से तो भी आपके पास एक और रिलेशन आ जाएगा। सी आंसर आ गया है, एडजॉइंट एम इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ एम। एडजॉइंट ऑफ एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम। If m square is I, then adjoint of m square is also I. So D is also answer. BCD is its answer. Okay. Next question and today's last question. This question was asked in 2016. This question asked in 2016. Let's check. P is given where alpha belongs to R. Suppose Q is a matrix PQ equals to KI, where PQ equals to KI से एक बात क्लियर है कि PQ अपॉन K is I, यानी कि P इनवर्स की वैल्यू Q अपॉन K के बराबर है। Where K belongs to R, K is non-zero, I is identity, Q23 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है Q की वो K/8 है। डेट ऑफ Q भी गिवन है, डेट ऑफ Q इज K²/2, राइट। देन आपको चेक करना है कि कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। आपको चेक करना है कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं, यानी कि आपको अल्फा फाइंड करना है और आपको Q फाइंड करना है। सबसे पहले हमें PQ इक्वल्स टू KI गिवन है, ठीक है। PQ इक्वल्स टू KI गिवन है, डेट अगर हम लेंगे तो एक रिलेशन तो हमारे पास आ ही जाएगा, डेट ऑफ P डेट ऑफ Q इज इक्वल्स टू K³। डेट ऑफ P आप कैलकुलेट करें, डेट ऑफ P की वैल्यू आ जाएगी 20 + 12 अल्फा, ठीक है। डेट ऑफ Q वो हमें ऑलरेडी गिवन है K²/2, दिस इज इक्वल्स टू K³। यहां से K² ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है, दिस इंप्लाइज 10 + 6 अल्फा इज इक्वल्स टू K, ये एक K की वैल्यू आ गई। दूसरा आप देखो P इनवर्स Q/3 है, हमारे पास Q23 है, ठीक है, Q23 है। अब P इनवर्स का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो है 1/det ऑफ P। 1/det ऑफ P, व्हाट इज वैल्यू ऑफ det ऑफ P? 20 + 12 अल्फा, ठीक है। और ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, यानी कि अगर Q/K इनवर्स ऑफ P है और Q(23) -K/8 है, इसका मतलब हमें P का कौन सा एलिमेंट कैलकुलेट करना है? कोफैक्टर 32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज इक्वल्स टू 3 अल्फा + 4। 32 का मतलब कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, अपॉन डेट इज इक्वल्स टू Q23 अपॉन K, क्योंकि इनवर्स Q नहीं है, Q/K है, तो Q23 कितना है? -K/8 अपॉन K, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। अब देखो ये जो इक्वेशन है इससे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ गई तो K की वैल्यू भी आ गई, क्वेश्चन खत्म, सब कुछ पता चल गया हमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप you enjoyed this lecture, right? Say your friends to subscribe our channel. Thanks for watching. Bye bye for now.